अविश्वसनीय, अद्वितीय, अतुलनीय। जी हाँ, जो आज हमारे साथ हैं, उन्होंने इन शब्दों को क्या कहते हैं अपनी कमेंट्री में यूज कर करके हमें भी सिखा दिया है कि ये शब्द एग्जिस्ट करते हैं हिंदी डिक्शनरी में। बट आकाश चोपड़ा to me is the best voice in Hindi when it comes to cricket. Akash, thank you so much for taking the time out to talk to us. शर्मिंदा मत करो, वैसे सब कुछ ठीक है, पर इतना शर्मिंदा मत करो प्लीज। अरे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं, this is the truth. This is the truth. And one thing we missed was you. I wondered how you would have done the commentary on the last day of the Brisbane Test. I know. वो लगता है कई बार, like you actually feel कि wish you were there. So there are certain moments as a commentator, of course. So these are those iconic moments, and you want to have the mic at that point in time. और मेरे हिसाब से तो क्या ये जो Brisbane victory था, the entire Test series actually, I am rating it as the best series that I have seen. तो उसमें थोड़ा unfortunate है that you're not behind the mic, but then it's okay. You know, you can't get everything. I'm very happy the way India has performed. It makes me very proud as an Indian cricketer, as an Indian fan, as a like a stakeholder in Indian cricket. All of us are. So it obviously makes us immensely proud. एक चीज है ना आकाश, this is getting sweeter by the day, नहीं? You're relishing it. हम जैसे कितनी बातें जो है एकदम से सामने आ रही हैं अब जब बात कर रहे हैं, and I don't think anyone's gotten over it, huh? All of us have been talking about it. That's how brilliant this win has been. तो हम भी जैसे बात करते रहते हैं ना, तो we're always thinking, यार वो वाला कितना अच्छा था, यार we've forgotten Jadeja's run out, यार we need to talk more about all these things. We've suddenly, Ashwin and Bihari's innings, we're not talking about it as much as we're talking about, say, Rishabh Pant's innings in the last Test. तो इतनी कुछ चीजें हैं जो कि you're just going back and you're wondering, wow, what a series, right? Actually, so Jamie ने ना एक दिन मैं था actually में, हाँ, तो Jamie and I were actually on one call. वहाँ ये कह रहे थे किसी के बारे में, वनडे क्रिकेट के बारे में बात हो रही थी कि शादी में फूफा। अब वो हैं तो सही, पर आप मतलब वो हैं और he had a context to it. So मुझे तो ये जैसे, क्योंकि आपने याद दिलाया, तो मुझे आती है वो बिग फैट इंडियन वेडिंग, वो जो पंजाबियों की होती है, जो 5 7 8 फंक्शन होते हैं, फिर आप पीछे बैठ के देखते तो कहते हैं यार वो सगन में भी अच्छा हुआ था यार, दैट मोमेंट एंड दैट वन दैट फेरे पे ये हुआ था, वहां पे डोली पे ये हुआ था, फिर रिसेप्शन पे ये हुआ था। इज दैट काइंड ऑफ अ बैड एनालॉजी, आई नो, पर ठीक है, आप तो साथ में मतलब बॉलीवुड के गानों को भी मतलब कर रहे हो साथ साथ, तो आई थिंक इट एक्चुअली फिट्स राइट देयर कि बिल्कुल ठीक है, वो हम साथ साथ हैं, लंबा चौड़ा वो बड़ा संजीलीला बंसाली टाइप ऑफ सेट, और उसके अंदर ये ग्रैंड स्केल पर एक मूवी का प्रोडक्शन हुआ, और वी आर एंजॉयिंग एवरी चैप्टर। जितनी बार देखते हैं, जितनी बार याद करते हैं, उतना वो एक्चुअली दिल के करीब लगता है। I would feel like it's more like Sholay. You know, every character every has time you watch it again, some other characters stand memorable, yeah. But आप ये बताइए सर, I mean, I know we've all spoken about it on different platforms, but 36 all out के बाद मेलबर्न जाके जीतना उसी टीम के साथ, you ticked off one huge box. In many ways, then you outdo that on day 5 in Sydney, you know, where at one time, yes, you could have gone for the win, but once the two big wickets of Pujara and Pant fell, Ashwin and Vihari knew कि यार अभी हम दोनों दौड़ नहीं पाएंगे, but then you bat out 44 overs, उसके बाद you outdo that with Brisbane. I mean, what does this say about this team's just the resilience, right? Yeah. So that I think is the most used word, resilience, resolve, that fight, that grit. क्योंकि सेम टीम नहीं थी ना जेमी और मैं, अगर एडिलेड से मेलबर्न पहुंचे तो विराट कोहली और शामी चले गए थे, सडनली यू हैड अ न्यू कैप्टन, अभी भी रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, यू हैड टू मेक अ फास्ट बॉलर डेब्यू, और उस मैच के अंदर भी आप उमेश यादव को गवा देते हैं। सो व्हाटएवर कुड हैव गॉन रॉन्ग हैज गॉन रॉन्ग। टॉस भी आप नहीं जीतते हैं, क्योंकि ये पिछले 10-12 साल के इतिहास बताता है कि अगर आप अवे मैचेस में जाते हैं और अगर आप टॉस हार जाते हैं तो वेरी रेयरली डू यू एंड अप विनिंग द टेस्ट मैच। तो आप टेस्ट शुरुआत गलत नोट पे कर रहे हैं, आप हार जा रहे हैं टॉस पर, फिर वहां अजिंक्य रहाणे की कप्तानी बड़ी मतलब इंस्पिरेशनल रहती है कि रविचंद्रन अश्विन पहले घंटे में बॉलिंग कर रहे हैं, वो 2 विकेट चटका देते हैं, इज गॉड ऑफ वुड ओवर स्टीव स्मिथ, फिर सिराज लंच के बाद आते हैं तो वो भी उतना ही अच्छा काम करते हैं, फिर रहाणे लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड स्कोर द सेंचुरी। इट्स लाइक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि तब आपको लगता है दैट्स इट यार, अब इसके बाद इससे बेहतर तो क्या होगा, एंड यू ऑल्सो स्टार्ट लिविंग दैट, क्योंकि सिडनी में हम पहले 4 दिन को ना बड़े कन्वीनियंटली भूल गए हैं
सच्चाई ये है कि हम बहुत पीछे थे मैच में। आप पहले दिन वो देवर अबाउट 170 फॉर 2 और 175 व्हाटएवर फॉर 2, देवर 200 फॉर 2 एट वन स्टेज। अब वहां से कम बैक करते हैं, बट देन यू स्टिल कंसीड अ साइजेबल फर्स्ट इनिंग्स लीड। अब आप साइजेबल फर्स्ट इनिंग्स लीड कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर चेजिंग अ शैडो, मतलब आप पकड़ नहीं पाओगे। आप कोशिश कर रहे हो पर इट्स स्लाइटली अवे फ्रॉम यू। और फिर आखिरी दिन जीत तो नहीं थी पॉसिबल। आई डोंट थिंक कि वो एक्चुअली रियलिस्टिक आउटकम था ऑन अ स्लोइश सरफेस विद द काइंड ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज कह लीजिए, थोड़ा सा कम विश्वास भी होता है। वो एक पंत की इनिंग्स थी जिसने सबको मतलब थोड़ा सा उत्साहित किया, पर रियलिस्टिकली वो विन पॉसिबल नहीं थी। इवन ब्रिस्बेन का भी जो विन था वो वंस इन अ मिलियन ईयर्स काइंड ऑफ विन है ना, होता नहीं है। 1988 से तो कभी हारे नहीं थे वहां पे, 236 से ज्यादा कभी चेज नहीं हुए हैं। वहां आप एक दिन में 324 बना देते हो, इट्स अनहर्ड ऑफ। तो और एंड अनथिंकेबल। तो वहां से आप देख रहे हैं लास्ट डे वाज अगेन रिजॉल्व, रेजिलियंस, ग्रेट एंड ऑल ऑफ दैट। और टू डू दैट बेटर कि आप 4 खिलाड़ियों को गवा देते हो उसके बाद। मतलब हर मैच में आप ना लोग गिरते जा रहे हैं, पर वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है कि भैया अब आप हैं, आप खेल लो यार। और वो जिसको खिलाते हो वो अच्छा करता है। मतलब इट्स अ ड्रीम सीरीज एब्सोल्युटली। यू कांट रियली पिक अ मोमेंट, यू कांट रियली से कि यार ये वाला जो था ना सबसे मेरे दिल के करीब है। क्योंकि वो सारे के सारे जो थे पूरा शुरू से लेकर अंत तक, वो सब जो लम्हे थे, मोमेंट्स थे, दे वर वेरी वेरी स्पेशल। They were really special. एक चीज है आकाश, you've been around this team, right? You know, as a commentator, आप काफी लोगों से बात करते हैं. You're close to some of the players in the team. क्या है यार? What was it? What was it? How is it? I mean, I know that, and finally, thankfully, credit is now being given to Ravi Shastri and the support staff and the coaching staff. क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से हराना, वो एटीट्यूड जो है, आई नो दैट देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन नाउ अबाउट विराट कोहलीज कैप्टनसी ये वो, बट विराट इज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग दिस एटीट्यूड इन द टीम एंड यू कैन नॉट डिनाई इट, राइट? तो क्या है यार, व्हाट इज इट? इज इट द इंडियाज यंग ब्रिगेड? भाई दे वांट टू गो आउट फॉर अ विन. ये वो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ही नहीं कि हम बस अच्छे से खेलेंगे, ठीक ठाक जो बॉस कहेगा वो करेंगे, वैसा नहीं है. एवरीबडी वांट्स टू गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स. आई एम ग्लैड दैट यू मेंशन्ड इट कि क्योंकि अभी थोड़ा सा नया एक मीडिया सर्कस चल रहा है कि विराट हटाओ, रहाणे लाओ एंड ऑल ऑफ दैट. आई बीन लिसनिंग टू दैट एज वेल. पर ये तो सिर्फ विराट कोहली की भी कहानी नहीं है. ये कहानी तो मतलब आज से 15 साल पहले, शायद 20 साल पहले शुरू हुई थी, जब आप बाहर जाके शायद लड़ना शुरू किया था आपने. उससे पहले तो आप जाते ही कहाँ थे? जाते थे सिर्फ हारने के लिए जाते थे. सडनली आपका एक बिलीफ आना शुरू हुआ कि आप यहाँ पे compete कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू स्टार्ट विनिंग, कि अब आप क्या जीत सकते हैं. और द टीम दैट इट इज राइट नाउ, मतलब सेम बॉलर्स 5 साल 7 साल पहले भी थे, सेम बॉलिंग सेटअप था, पर वो डिफरेंट थे. अब कोहली की कप्तानी में वो डिफरेंट रहे हैं. अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आप नंबर 1 पे हैं, क्वालिफाई करेंगे, तो उनमें से 6 में से 5 सीरीज की कप्तानी तो कोहली करेंगे. तो लेट्स नॉट रियली डिस्काउंट व्हाट ही हैज डन. जो इस टीम ने किया है वो अनबिलीवेबल है. वो अनबिलीवेबल फॉर, हमने डिस्कस कर लिया, फॉर मल्टीपल रीजंस है कि आपका रिसोर्सेज नहीं है, बैक्स टू द बॉल, यू आर चेजिंग हिस्ट्री, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू हिस्ट्री एंड राइट इट एंड व्हाटएवर एल्स. पर आई थिंक एक रिफ्लेक्शन है कि हमारा जो आपने कहा ना यहाँ की सोसाइटी कहाँ पर है, हम कहाँ पर है. क्योंकि 5वें दिन ब्रिस्बेन में टी पर आई वाज डूइंग अ शो, तो ये स्क्रीन क्रिकेट फो पे थे, और मैंने कहा ड्रॉ इज अ वेरी लाइकली आउटकम. आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर ऑन व्हाट्सएप एंड आई सेड गो फॉर अ विन. मैंने कहा भैया खुश हो जाओ यार, ड्रॉ हो जाएगा तो ये वो मेरा माइंडसेट है ना, वो मेरा माइंडसेट है कि मुझे लगता है कि चलो यार ठीक है, ड्रॉ हो जाएगा, कोई बात नहीं, ट्रॉफी तो आपकी अपनी है. बट देन ड्रॉ इज बिगर देन अ विन. यही तो हमने सिडनी में भी कहा था कि इट्स बिगर देन अ विन, और ऑस्ट्रेलिया के लिए एनीथिंग बट अ विन वाज अ लॉस. So from that standpoint, आपने कहा चल यार ठीक है जितना हो जाए, but this team continued to go. They just did not stop. What makes him this strong and resilient? I don't know. Maybe world is changing. हमारे बच्चे सारे बदल गए हैं और intimidation factor कुछ है नहीं. नटराजन को पता है कि वार्नर को तो देखा हुआ है यार, इट्स ओके. मतलब ये तो 12,000 लोग हैं, मैं तो 30,000 50,000 लोगों में भी खेल चुका हूँ. सिराज के पास भी वही कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो अलग चीज होती है. जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मैं पहली बार गया था, मेरे लाइफ में पहला टूर था, और जब जा रहा था तो यही पता था कि यार हारने जा रहे हैं, जीतने का तो कोई चांस है नहीं. तो हारने के लिए आप ठीक है कोशिश करो कि अच्छे से हारो. तो वो वाली माइंडसेट था शुरू में कि जीतना तो इम्पॉसिबल है. पर अब ये टीम जब जाती है, कुछ लड़के तो ऐसे हैं, शुभमन गिल पहला टेस्ट खेल रहे हैं, पर प्रीटी श्योर की 2-3 टूर कर चुके हैं ऑलरेडी. सिराज हैज बीन देयर बिफोर.
तो ये एक बड़ा सिस्टमिक चेंज हुआ है बहुत समय से, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं कि आप तैयार रहें और अंत में जो आपके जो सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग भी है वो तैयार रहती है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, वंस अगेन रवि शास्त्री जी के नाम पे बहुत मीम्स बनते हैं, बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है समटाइम्स, टोटली अनफेयर। पर अगर पहले टेस्ट मैच के बाद अगर कोई उस टीम को कोच चाहिए था, हैड टू बी रवि शास्त्री, क्योंकि कोई भी दूसरा कोच आप वहां पे डाल देते तो वो बातें करता लेकिन बातों में कन्विक्शन नहीं होती। सब पेप टॉक देते हैं, सब कहते हैं अरे अरे लड़ जाएंगे, तुम बहुत अच्छे हो, पर अंदर से ना कन्विक्शन नहीं होती और सेल्फ डाउट्स भी होते हैं। फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को कई बार आप पिन करते रहते हो कि यार सी व्हाट हैपेंड देयर, डोंट लेट द गार्ड डाउन। रवि शास्त्री इज ऑन द अदर एक्सट्रीम, वो कह रहे चिंता ही मत करो, शार्दुल और शार्दुल ना हेजलवुड क्या है, कुछ नहीं है, वो उससे अच्छा डालता है। पर टू से दैट विद दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन इज अनरियल। तो रवि शास्त्री, भरत अरुण, व्हाट दे हैव डन, आई थिंक दे डिजर्व फुल क्रेडिट, और उतना क्रेडिट मिल नहीं रहा, विच इज स्लाइटली अनफॉर्चुनेट। I'm very glad, Akash, कि आपने वो 2003 वाला टूर का जिक्र किया था, because again I think there's a generation which will not understand what that tour meant to to many people, because उससे पहले 3-0 blank with Jaimat Lele saying ये हारेंगे, I don't need to remind that to you, but what that tour did, because I think so many teams, and we've seen it, which is why the skeptic in me was coming out कि भाई नहीं draw कर लो, because that tour, the team, I mean, at least from us watching, it didn't seem like they were just there to maybe draw one match, and to come back with a level scoreline, then that of course sets in motion the next time and down the line. What do you think about इस tour का, अगर कोई लोग देख रहे हैं, अगर कोई युवा खिलाड़ी है जो शायद fringes of Indian team है, वो क्या कहेगा कि यार हमारा B team, अगर उसको बोलें, the B team has a player which can stand on one leg and hook Pat Cummins for 6, despite not playing for 4 years, first left cricket. What will this win do, say, for the next level of players? It changes the mindset completely, क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से देखते नहीं है ना, आप विश्वास नहीं करते। आप लोग आपको बताते हैं 1971 में इंडिया इंग्लैंड गया था और टेस्ट सीरीज जीता था, we've all heard about it, बड़े अच्छे मैचेस हुए होंगे पर मैंने नहीं देखे, टीवी नहीं होता था, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, फिर जब मौका भी नहीं मिला देखने का, टू एंजॉय एंड रिलिश एंड टू एक्चुअली टेक समथिंग फ्रॉम इट। तो जब आप खुद अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो फिर यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट। इट्स लाइक इट्स आल्सो लाइक दैट 4-minute माइल, जब तक किसी ने नहीं तोड़ा था तब तक लगता था टूट ही नहीं सकता, फिर जब तोड़ने लगो तो फिर वो ऐसे ठक ठक करके नीचे आने लग जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट बिलीविंग कि हो सकता है यार, अगर ये हो सकता है तो अगली चीज भी हो सकती है। तो ये तो अनबिलीवेबल सर्कमस्टांसेस थे। 2018-19 में भी इस टीम ने जीता, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं जीती, वहां पर पहली बार जीती, पर वही स्केप्टिक्स है, स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है, चलो देखो थोड़ा सा है जीत, पर उसमें उतनी शायद शाइन नहीं है, उतनी मिठास नहीं है। अब दिस इज इन फैक्ट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर दिस टूर बिगिन, मेरा ये मानना था कि अगर भारत ये रिपीट करता है, रेप्लिकेट कर सकता है, तो I will actually put this win at par with those consecutive tour wins actually at par with the World Cup victory। 2011 में आप वर्ल्ड कप जीते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 2 बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना, तो वो दैट इज एट पार विद वर्ल्ड कप विक्ट्री। पर अगर यहाँ पे खाली टीम देख लें अपनी, तो ऐसा लगता है कि ये तो वर्ल्ड कप से बड़ा काम कर दिया है। बिल्कुल, because you go back to 90, the last time Australia were beaten there, उस टीम में आपका Malcolm Marshall थे, Walsh, Ambrose, Patterson. Here you had Shardul, which is pretty much on debut. You had Sundar on debut, Natarajan on debut, Siraj, the leader of the attack. उनकी तीसरी मैच में तुम्हारा, it's really, the more you think about it, कभी-कभी जहन में आता है सिडनी, कभी रहाणे का सेंचुरी, but then when you go back to Brisbane, ये करना कमाल। I agree. Impregnable. Fortress was finally breached. I mean, nobody thought. I think Akash, the other thing being कि जब आपने last time जीता था तो ये सब बातें हो रही थी, अरे इनकी टीम पूरी full strength नहीं थी, डेविड वार्नर नहीं है, स्टीव स्मिथ नहीं है, यहाँ पे आपके bowlers जो कि 3 टेस्ट मैचेस ओल्ड हैं, वो जाके विकेट्स भी ले रहे हैं, and you have the best bowling attack in the world coming at you. I felt so bad for Pujara, and I'm sure the whole country was. Like, that whole story is so adorable, where he says that my daughter said कि I will kiss him. Oh my gosh, like एक बार जब लास्ट उनको एक पड़ी थी, जब उनका सिर का जो वाइजर है शायद वो निकल के गिर गया था, और उन्होंने बड़ी गंदी सी डर्ट दी थी पैट कमिंस थे। मुझे लग रहा था कि how, I mean, these people at the end of the day, what do you make of the Australian bowling and the way India stood up to it? Because these guys don't give an inch. They were coming at you. They were frustrated. मतलब उनके ऐसे हो रहा था गुस्से में कि ऐसा एक्चुअली मुझे जो फीलिंग आई कि मुझे स्ट्रेचर पे ले जाओगे तो मैं चला जाऊंगा,
अगर मैं स्ट्रेचर पे नहीं हूं तो भैया मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, खेल रहा हूँ, और आई विल गिव एवरीथिंग दैट आई हैव, एंड दैट आल्सो मेक्स अस वेरी प्राउड, नो, कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सी, एट द एंड ऑफ द डे इसी वजह से जो इंडियन फैंस होते हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं, या फिर वो जॉय इलेटेड होते हैं, तो वो इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन दीज थिंग्स. पर यहाँ पर तो जो हमने देखा है, इट वाज जस्ट दैट शो ऑफ कैरेक्टर. स्पोर्ट इट मेक्स कैरेक्टर, बट इट आल्सो डिस्प्लेज योर कैरेक्टर. तो यहाँ पे वो कैरेक्टर दिखाया कि कोई भी हो, और वो मतलब इट्स इन्फेक्शियस, कि चाहे वो नवदीप सैनी एक टांग पे भाग रहे हैं, हनुमा विहारी वो भाग नहीं पा रहे हैं तो भी बैटिंग कर रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन वो सारा दिन बैठे ही नहीं है क्योंकि वो जूते का लेस भी नहीं बांध सकते, अगर बैठे तो बैठ ही जाएंगे, वो बैटिंग कर जाते हैं. रविंद्र जाडेजा के चोट लगी है, पंत के चोट लगी है. अगर आप यहाँ पे देखें तो चेतेश्वर पुजारा तो इतनी चोटें खा गए हैं कि आई मीन इट्स अनरियल. एट सम स्टेज यू से कि बस करो यार. आई मीन क्रिकेट का मैच है, कोई ग्लैडिएटर तो है नहीं हम कि अब मार खाते रहो, मारोगे तब ले जाओगे. बट दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू गॉट. और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. वी मस्ट ऑल्सो रिमाइंड आवरसेल्व्स कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. बहुत सारे खिलाड़ियों ने बहुत सारी चोटों के साथ लड़े हैं, भिड़े हैं, खड़े रहे हैं. चाहे वो वीवीएस लक्ष्मण की वो बैक स्पाज्म था 2001 की ईडन गार्डन्स इनिंग्स, whether you talk about Sachin Tendulkar's injury, you talk about that famous Anil Kumble jaw injury, all of us actually have gone through it. पर कलेक्टिवली इतनी बार इतने समय पर किसी के साथ होते हुए हमारी याददाश्त में नहीं कि हुआ हो. बट दिस टीम फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, कि सिर्फ एक तो था कि जो स्किल होती है, फिनेस होती है, टैलेंट होता है, whatever, but this was a slightly different ball game जहाँ पे you had to put your body on the line, which really seldom happens in a game of cricket. Contact sport नहीं है ये, actually थोड़ा दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से. पर इस बार ऐसा लगा कि ये क्रिकेट का मैदान था पर बॉक्सिंग का मैच चल रहा था. नहीं, मुझे बस ये पूछना कि like generally I know that Virat Kohli has a personality. We know that he's very, what do you say? He's very expressive. He's very out there. He's aggressive. All of that. Sometimes some of the players who are in awe of him may not be able to handle that. I kind of get the feeling that now with having what they have done in Australia without Kohli, for whatever the circumstances may be, I feel like unme thoda sa equal feeling aa jayegi. Not that they were not equal. You know what I'm saying? I mean, I'm not getting the right word, Akash. But like, I'm not saying they weren't equal. They're all equal in a team. But just it's not like Virat Kohli asks these players to be in awe of him. He's just such a brilliant batsman that you can't help but be in awe of him. And he's not a Sachin Tendulkar. His personality is very different from a Sachin Tendulkar, who will not be very aggressive and very expressive. I just get the feel, or do you agree with me when I say कि अब क्या होगा कि आपके जो सारे खिलाड़ी हैं, they can be around him and say हमने क्या है, हमने कुछ काम हमने भी किए हैं ऐसे काम. See, I'll tell you कि firstly we are not privy to dressing room dynamics. हर ड्रेसिंग रूम का एक डिफरेंट डायनामिक रहता है. कोहली के अंडर एक डिफरेंट रहा होगा, कोहली के बिना एक डिफरेंट रहा होगा. व्हाट यू गेट लाइक सेंस अगर आपको मिलती है जो रहाणे के अंडर था, कि लाइक लीडरशिप बाय कमिटी, कि दैट वो 5-7-8 लोग इकट्ठे होते होंगे और फिर डिसाइड करते होंगे कि अच्छा अब क्या करना है. Maybe with Kohli that may not have been the case, क्योंकि he is that kind of a personality. He wants to take everything head on and puts a lot of onus on himself. कि भाई मैं करके दिखा दूंगा ना यार, मैं I'll lead you to this way, and then encourages everybody to actually stand behind him. So बहुत different dynamics हैं leadership के, पर it can only get better from here, and actually Indian cricket can benefit from here and nothing else. कि आपके पास अब there are more leaders, maybe they are more vocal now. कि environment has changed a little bit, dynamics have changed a little bit. Suddenly what you're saying partially correct as well, कि सब कह रहे हैं कि चलो यार अब तो इकट्ठे करते हैं. पहले था कि चलो कोहली आपके पीछे चलते हैं. So maybe if that is what has changed, that's even better for Indian cricket, क्योंकि see I firmly believe कि इंडिया जो है, इससे में इंडियन क्रिकेट एक वो उस कस्प पर है कि यहाँ से वर्ल्ड डोमिनेशन का एरा शुरू होना चाहिए. जो हम वो इनविंसिबल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और दैट टीम फ्रॉम द वेस्ट इंडीज, वो वाले जो थे ना, जहां घर पे जाते थे, हर जगह जाते थे, दिल खोल के खेलते थे, जीतते थे, एंटरटेन करते थे, और मादा रखते थे कि भैया घर पे बाहर हम दोनों तरफ जीत सकते हैं. आई थिंक वी आर प्राइम फॉर इट. अगर यहाँ से हम वो अचीव ना कर पाए एज एन इंडियन क्रिकेट टीम, आई वुड एक्चुअली बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स आर देयर. विदाउट कोहली, बुमराह, शामी, उमेश, अश्विन, जाडेजा, KL Rahul, Rohit not in the first 2 test matches. After all this, if you are able to achieve this, अगर ये सबको डाल दोगे तो भैया फिर
हारना मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा. That's very, very well said. I'm going to put you on the spot. One last question before I let you go. आपने कहा था कि एक पल, एक मोमेंट चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन सर एक अगर आपको एक with a gun to the head, one passage of play, one performance. One performance, one. जो भी आपको मन में. It's very tough. It's very tough, honestly. See, it's strange, but okay. See, it's tough to choose, honestly. But क्योंकि करना है तो कर देते हैं, क्योंकि this is how it is. I'll go with lots to choose from. I'll go with Ajinkya Rahane's century, actually. Many people may disagree, but not just his captain's leadership and batting. If I were to put both of them together, क्योंकि मेरा ये बहुत strongly मानना था कि जो एडिलेड में हुआ उसके बाद मेलबर्न का पहला सेशन, पहला घंटा, अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो ghosts from the past will come back to haunt you and then you are dead and buried. Australian teams in the past would actually make sure that you do. अब यहाँ पर आप टॉस हार जाते हैं, आप 5-4 बदलावों के साथ उतरते हैं, वहां पे आप अश्विन को शुरू में ले आते हैं, वेरी गट कॉल, इंस्टिंक्टिव कॉल, वहां पे आप विकेट लेते हैं, पर फिर भी आप मैच में पीछे हैं बिकॉज यू हैव टू बैट लास्ट. वहां पे अजिंक्य रहाणे प्लेज दैट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ टाइम, लाइक इट वाज एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक इनिंग्स, अगेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. क्योंकि एक चीज जरूर रहेगी कि लीडरशिप कोई भी हो, और वो जो खास तौर से जो लीडर है, कमिटी इज फाइन, एवरीथिंग एल्स इज ओके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट, पर वो कप्तान को चाहिए कि चले भैया सीना तान, और एक सबको कहे कि चलो भैया मैं इंस्पायर कर रहा हूं, मैं करके दिखाता हूं क्या करना है. उसके बिना कभी भी वो टीम जो है वो चैंपियन टीम नहीं बनेगी. जितनी भी आप टीम्स उठा के देख लीजिए, आप पाएंगे कि द कैप्टन एक्चुअली वाज दैट कैरेक्टर हु वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन मोर वेज देन वन. तो चाहे वो लड़के कर रहा हो सौरव गांगुली, और फिर रन भी बना रहे हो, और फिर टीम को भी इकट्ठा कर रहे हो, और लुकिंग इनटू द ओपोनेंट्स आईज, और विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी और रिकी पॉन्टिंग, यू नेम इट, एंड यू विल फाइंड कि यार ये लीडर स्पेशल होना चाहिए. तो इस टर्न अराउंड का जो एक बहुत बड़ा मोमेंट था, वो पहले 2 दिन थे. फर्स्ट रहाणे एज द कैप्टन, देन रहाणे एज द बैट्समैन. Absolutely. Chali, I think that's a fantastic note to end on, because indeed it is all about the captaincy, and from 36 all out to go to winning the series 2-1. Absolutely. अभी मुझे तो और टाइम लगेगा. I think हम सबको काफी टाइम लगेगा. We'll be talking about it for a while, because like आप जैसे बातें कर रहे थे ना आकाश, I was again going back to the matches. Series बननी चाहिए, इसकी series बननी चाहिए, proper 4 part series. This is better than any reality TV. This is better than any film. This is anyway. Akash, thank you so much, and you will be regaling us with your commentary in the India-England series. Yes. So we are looking forward to it. और बहुत टीम काफी अच्छी है इंग्लैंड की भी, तो अब ये भी बड़ा टेस्ट है इंडिया के लिए. And looking forward to lots more videos on your YouTube channel. Oh yes. Thank you guys. Thanks a lot. The best. Thanks, same to you. Bye. Always a pleasure to talk to you, Akash. Thank you.